We were looking into this presentation and Christianity. Presentation का नाम था Christianity. उसमें हम लास्ट पोर्शन था हमारा Trinity, the mystery of the Trinity. और ये बोलते हुए मैंने समाप्त किया था it is a mystery, and I don't know when I explained how much deep you understood about that concept Trinity, which is not that word Trinity is not there in the Bible, but Father, Son and Holy Spirit. In a theological term we call it as Trinity. It comes from Latin word. It has the meaning three in one. So the next portion in our outline, C, under main body, मतलब section number 3 में section C, era of leadership, the mission of God and how God invited us. Write a brief outline of OT and NT leadership. हमारा काम यह था इस हेडिंग के नीचे पुराना नियम और नया नियम का मेन लीडरशिप का थोड़ा समाचार को थोड़ा डाटा कलेक्ट करके लिखने का था. अंडर दैट वी हैव 4 सेक्शन ABCD. पॉइंट नंबर 1, पेट्रियार्क. हाँ बेटो, कौन सा PDF? मैंने यही PDF चला रहा हूँ सुबह से लेकर. कलर वाला मैंने सुबह पढ़ के आने के समय मैंने किया था. इसको हाईलाइटिंग बोलता है, वो PDF अलग करके नहीं है. हमारा हेडिंग ये था era of leadership. Under that the first one, patriarchs. point number A, the patriarchs in the Bible. patriarch करके शब्द का मीनिंग हिंदी में तो पिताओं का युग. पुराने नियम को हम अलग अलग युग में और इसका एक आउटलाइन बनाए तो पहले पिताओं का युग, उसके बाद डिलीवरर्स एंड लॉगिवर्स, उसके बाद जजेस एंड किंग, उसके बाद प्रोफेट्स. हमने सुबह ये भी पढ़े थे प्रोफेट्स नॉट ओनली इन ओल्ड टेस्टामेंट बट इट आल्सो देयर इन न्यू टेस्टामेंट. So the patriarchs in the Bible. So with the help of Google AI we will read. The patriarchs in the Bible. Introduction. The term patriarch comes from the Greek word patriarchs, meaning father of a family or tribe. In the biblical context, the patriarchs are the ancestral fathers of the nation of Israel, Abraham, Isaac, and Jacob, often referred to collectively as the patriarchal fathers. Their stories are 10, primarily found in the book of Genesis, chapters 12 to 50. These men were chosen by God to establish His covenant, through which He promised to bless them, multiply their descendants, and make them a blessing to all nations. Their faith, obedience, and relationship with God form the foundation of both Jewish and Christian traditions. So the first one was patriarch, and the meaning of the word, or it is in the Greek patriarch, which means father of family or father of a family or a tribe. मतलब एक जाति या एक वंश का पिता करके patriarch करके उनको टाइटल था ग्रीक में. So in a biblical context, patriarchs are the ancestral fathers of the nation of Israel. बाइबल में जब हम patriarch या era of patriarch करके पढ़ता है इज़राइल लोगों का कहानी में, the history of Israel, those names which comes in the first, they are known as patriarchs, पिता. उसमें से पहला नंबर अब्राहम, इसहाक एंड जेकब और जोसेफ भी है. So when we study about patriarch, ये 3 नाम तो जल्दी जल्दी हमारे मन में आता है क्योंकि हमारा हेडिंग ये था परमेश्वर कैसा इंसान को, लोगों को इस मिशन ने इन्वाइट किया. So that story begins, even though that begins from the life of Noah, but कुछ नेशन को आशीर्वाद देने का और नेशन बनाऊंगा और एक अलग योजना और नया कवनेंट किसको दिया? अब्राहम से लेकर हम पढ़ा. अब्राहम का कहानी उत्पत्ति का 12 से लेकर या 12 का आधा से लेकर हम वहां से लेकर पढ़ के आया तो अब्राहम का कहानी है. उसके पहले नोहा भी था, उसको भी पिता करके माना जाता है, लेकिन अब्राहम के कहानी से लेकर एक नया युग का समय करके मानता है. मतलब इजराइल लोगों का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक इतिहास का शुरुआत, ए न्यू हिस्ट्री बिगिनिंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्राहम. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ अब्राहम, उसका पिता क्या करता था?
So it also connects our context and the ancient civilization. मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजा, ये सब कुछ सिर्फ अभी का नहीं है, पहले जमाने से लेकर था। अब्राहम का पिता तो बनाता था, वहां से अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाकर बताया मैं तुझको एक नेशन का पिता बनाऊंगा। प्राइमरली ये बात कहानी चैप्टर जेनेसिस का 12 से लेकर 50 तक जो कहानी है, वहां पिताओं का सारा नाम लिखा है। सबसे लास्ट वाला नाम किसका है? जोसेफ। So it ends with the story of the historical evidences that is in Egypt. इजिप्ट से कहानी खत्म। सो पिताओं का युग कहाँ खत्म होता है? These men were chosen by God to establish His covenant, though through which He promised to bless them, multiply their descendants, and make them a blessing to all nations. Their faith, obedience, relationship with God form the foundation of both Jewish and Christian tradition. ये जो पेट्रियार्क का विश्वास और आज्ञाकारी बना, they were obedience to God, they were having a good relationship with God. All these things matters not only to Christian but to Judaizers or Jewish fellows, Jewish believers also. साथ ही साथ इस्लाम की कहानी पढ़ने का समय वहां भी है। When we studied Islam, we came across the word Abraham. जब हम इस्लाम के बारे में पढ़े थे तब हम पढ़े थे अब्राहम से लेकर शुरू हुआ, अब्राहम का इसहाक से लेकर हमारा पीढ़ी आ गया, इस्माइल से लेकर उनका कहानी अलग है, हागर और इस्माइल से। So these patriarchal evidences or the history of patriarch that is not only a foundation for Christians, that is also foundation for Jewish or Judaism. Point number 1, Abraham is known as the father of faith. Meaning, उनका नाम का meaning father of many nations. उनका पहला नाम था अब्राम। अब्राम करके नाम का मीनिंग है exalted father, जो पिता को ऊंचा किया। उसका हिंदी क्या है मुझे समझ नहीं आया। नहीं, वो जो पिता है सबसे ऊंचा स्थान उनको मिला। स्क्रिप्चर जेनेसिस 12 से लेकर 25 तक वाइफ सारा, ओरिजिनली उसका नाम था सारई। सन्स इस्माइल बाई हागर करके लिखा है, इसहाक बाई सारा। सो ज्यादा प्रचार करने के समय whenever we preach we focus on Isaac, and some pastors will take Hagar and Ishmael, but वो प्रचार का आगे क्या है उनको पता नहीं होगा। Why? Because we don't have much evidence about Hagar and Ishmael. What happened after that? और उनका पीढ़ी को ढूंढते ढूंढते इस्माइल को भी परमेश्वर ने बोला था मैं तुझको एक जाति, बड़ा जाति। अगर हम प्रचार में बोल के आया तो हमारा प्रचार का अंत कहाँ हुआ? इस्माइल का पीढ़ी कहां से लेकर कहां तक आया है? अरे इस्माइल का मोहम्मद तक नहीं गया, इस्लाम तक कनेक्शन हो जाता है। समझ आया? सो वी ऑलवेज टेक इसहाक। देन अब्राहम का बुलाहट के बारे में, अब्राहम इज द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ द पेट्रियार्क। अब्राहम ही पहला भी है, सबसे बड़ा भी है पिताओं में। God called him from Ur of the Chaldeans. मॉडर्न डे वो जगह है इराक। अभी उनका जगह का उर करके नाम है ना, यूआर, उसका आज वो इराक है। अभी भी वहां कुछ युद्ध वगैरह चलते रहता है। To leave his homeland and go to a land that he would show him, the land of Canaan. परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर बोला मैं तुझको जो जगह दिखाऊंगा वहां। God made a covenant with Abraham, promising to make him a father of great nation, to bless him and bless all nation through him. मतलब सारी जातियों को तेरी द्वारा मैंने आशीर्वाद करूंगा करके अब्राहम को परमेश्वर ने घर और उनका गांव छोड़कर निकलने के लिए बोला। जगह पहले नहीं बताया। हम we have already heard all these things through many preaching. Each and every pastor will go and connect with Abraham only. Then covenant with God, the covenant which was made between Abraham and God is known as Abrahamic covenant. अब्राहम का और परमेश्वर का बीच में एक कवनेंट का एक अग्रीमेंट था,
उसका नाम क्या है? जैसा हमारे जैसे लोग थियोलॉजियंस क्या बुलाता है? अब्राहमिक कवनेंट. So land, God promised Abraham and his descendants the land of Canaan. परमेश्वर अब्राहम को वाचा दिया था, कनान का देश मैं तुझको और तेरा आने वाला पीढ़ी को दूंगा. Descendants, its offspring will become a great nation. उनकी बाद उनका संतान जो होगा एक बहुत बड़ा देश और बहुत बड़ा नेशन बनेगा. और अब्राहम से परमेश्वर ने बोला था एक बार ताराओं की गिनती करके देखो कितना है. There are many. So ऐसा संतान का दूंगा करके बोला. फिर जैसे दूसरा कैसा बोला? समुद्र का मिट्टी के समान. हाँ? बालू. हाँ वो क्या? सैंड के समान. मैं सोचा बालू के समान. बालू. सो अब्राहम को परमेश्वर ने एक वाचा, एक कवनेंट दिया था. अभी उसको छोड़ दो. एक कवनेंट दिया था, वो कवनेंट आज पूरा हो गया. देन अरे अभी हो गया, वो छोड़ दो. जो बातों पर डिस्कशन करना उससे भी किया तो अच्छा है. जो हो गया वो बालू से कुछ करने का नहीं है. फेथ एंड टेस्टिंग. अब्राहम का जीवन में बुलाहट के बाद एक टेस्ट आया था. देयर आर मेनी टेस्ट इन हिज लाइफ, बट मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्टली वी टेक इसहाक को बलिदान देने के वाला, सैक्रिफाइसिंग इसहाक. एंड दैट इज द मेन टेस्ट दैट वी ऑलवेज प्रीच अबाउट. आई थिंक when Abraham received call in Genesis chapter 12, something also happened in his life. (27) से लेकर 11 का 27 से लेकर शुरू किया तो उन्होंने एक जगह पर आकर रुका था. वो जगह का नाम क्या था? मैं भूल गया. The days of Terah were 205 years and Terah died in Haran. हारान में रुका था उन्होंने. हारान में रुककर फिर वहां से जब पिता मर गया फिर वहां से लेकर कहानी शुरू किया. और उनके साथ लोत भी था. लोत ऐसा बोलते हैं हम. अब्राहम की द्वारा उसको इसके अंदर रख दो. अब्राहम की द्वारा परमेश्वर ने जाति को अनुग्रह किया. जब जरूरत होता है कनेक्ट नहीं होता, जब जरूरत नहीं है पूरा का पूरा कनेक्शन ही रहता है. ऐसा माना जाता है अब्राहम की द्वारा आशीर्वाद आने का कवनेंट था. लूत का जीवन में देखा तो लूत ने ऑलरेडी जो जगह आशीष पाया वो चुनते थे. कहाँ पर? प्रचार में भी एक पास्टर ने बताया, मैं ट्रांसलेट किया था शायद. सो एक जगह पर आने का समय अब्राहम ने लूत से बोला तुझको जो चाहिए वो लेना, मैं लेता. लूत ने जाकर कहाँ जगह लिया? सोदम गोमोरा का पास में. उसके बाद क्या हो गया? खुद का बीवी ही नमक का खंभा बन गया. ये हारान जो आप जगह बोले उसको भाई करे नाम भी हारान था ना. अब्राहम का भाई का नाम भी. हाँ, उनका भाई का नाम ऊर नाम था. नहीं, ऊर करके जगह का नाम था. क्या था शंभू? हिब्रोन. जगह वचन कहाँ लिखा है? 11 का 28. हारान डाइड इन द. नहीं, उनका भाई का भी नाम हारान ही है. नाउ दीस आर द जनरेशंस ऑफ तेरा फादर अब्राहम, नाहोर एंड हारान. अब्राहम का तीसरा भाई मर जाता है. एंड हारान फादर लोत, मतलब लोत का पिता है हारान. हारान भी मर जाता है. वो बहुत बड़ा इतिहास है, वो आप खुद पढ़ लेना. तो हम सिर्फ अब्राहम के बारे में ढूंढ रहे हैं. So अब्राहम का कवनेंट के बारे में मैंने बोला. The Abrahamic covenant is central to the biblical narrative. It included 3 main promises: land, descendants, blessing. अब्राहम का ये अब्राहमिक कवनेंट में 3 मुख्य बातें हैं. There are 3 main promises that was given to Abraham about land, about his descendants, and about blessing.
So under Abrahamic covenant 3 points. Land मतलब जगह कैसा वाला जगह दूंगा करके बोला, संतान को कैसा बनाऊंगा करके बोला, कैसे वाला आशीष की बात है अब्राहम के जीवन में अलग है. थ्रू यू आई विल ब्लेस नेशन करके बोला, आपकी तेरी द्वारा बाकी देशों को मैंने आशीर्वाद. So that is the difference. Then faith and testing we already know. Oh, Isaac का sacrifice का कहानी. Abraham is received as the father of faith, revered as the father of faith because he trusted God's promise even when they seemed impossible. His faith became the model of all believers. रोमियो का पत्री 4:11 पढ़िए. रोमियो का पत्री 4:11. इसका मतलब है अब्राहम का विश्वास और उनका काम बाकी सारे विश्वासी लोगों के लिए एक मॉडल जैसा बना. रोमियो के पत्री 4:11. प्रवीण बाइबल कहाँ है? उसने खतने का चिन्ह पाया कि उसी विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, वही था जिससे वह रोमियो का पत्री 4:3. Abraham believed in God and it was counted to him as a righteousness. ये कहाँ से पढ़ रहा था? रोमी 4:11. 4:3. 11 बोला. So as I said, he is also recognized as the spiritual father of Jews, Christians and Muslims. So whenever we study about the history of patriarch Abraham's story will come in under 3 religions: Christianity, Judaism and Islam. ये लेगेसी करके मीनिंग ये है, ये अब्राहम का नाम लेकर कौन कौन अभी भी बड़ा बातें बोलता है करके. लेगेसी मतलब आपका पिता का नाम आज भी किसी ने आपका गांव में आपको आपके बारे में पहचान की जगह पे बोला तो उनकी लेगेसी है आपका जीवन. लेगेसी का हिंदी क्या है प्रवीण? गूगल में ढूंढो. पीढ़ी के जैसे नहीं, ऐसे तो हमारा बाप दादा तो था, कोई याद नहीं, हम भी याद नहीं करता है. हाँ बोलते हैं ना. नहीं वो सब कुछ है. एक क्या बोलते हैं, साइन छोड़ के जाते हो बंदा, वो कभी भी कोई भी नहीं भूल सकता है. पीढ़ियों से पीढ़ी इनकी नाम लेकर बाकी सब लोग जीता है. वो सब फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ किया करके कुछ नियम हम बनाते हैं ना, जो बैच में कितना लोग भी आएगा उनकी नाम याद आते ही रहेगा. ऐसा मतलब एक सिग्नेचर छोड़ के चले गया, उनकी नाम लेके ही बाकी सबको सब कुछ मिलता है. क्या था? ऐसा नहीं होगा. हाँ ऐसा भी आएगा. सेकंड वन, द सेकंड फादर पेट्रियार्क इसाक, द सन ऑफ प्रोमिस. इसाक का नाम का अर्थ है द सन ऑफ प्रोमिस. मतलब स्पिरिचुअली ओरिजिनली इसका नाम का अर्थ है ही लव्स, हंसने वाला. उनके बारे में जेनेसिस चैप्टर 21 से लेकर 35 तक लिखा है. उनका बीवी का नाम है सन्स ईसा एंड जेकब. ईसा और जेकब का कहानी क्या है आपको पता है? एक का पैर पकड़ के दूसरा आया था और उसके बाद कुछ कहने के लिए खुद का स्थान को भी छोड़ दिया. एक वचन कहाँ पे लिखा है? इवन दो ही डिड रॉन्ग गॉड चूज हिम करके एक वचन है. वो कैसे उनको ही चुना करके, तो जब आप ऊपर पहुंचेगा उनसे क्योंकि बाइबल में कहाँ पे नहीं लिखा ईसा याकूब को परमेश्वर इस कारण से चुना. क्वेश्चन कमिंग टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, हमको तो चुना है, हमने उससे ज्यादा गलती किया था. सो हैप्पी, चुना करके हैप्पी होना. क्यों चुना, कारण क्या था, वो जानने के लिए गए तो बाइबल में नहीं है. Sons Esau and Jacob, birth and early life. Isaac was a long-awaited son of Abraham and Sarah, born when Abraham was 100 years old. His birth fulfilled God's promise to Abraham. So through Isaac, the promise which was given to Abraham about his descendants
उनका संतान के बारे में जो भविष्य जो प्रॉमिस दिया था परमेश्वर ने, वो प्रॉमिस इसहाक के द्वारा पूरा हो गया। देन इट इज ऑल अबाउट द सैक्रिफाइस ऑन माउंट मोरिया, मोरिया पहाड़ पर उनका सैक्रिफाइस की कहानी हमको पता है। देन मैरिज एंड कवनेंट रिन्यूअल, इसहाक मैरिड रिबेका, ये कहानी किस चीज को याद है? याद है तो दोस्तों को बताना रात को। इसहाक मैरिड रिबेका who was chosen by Abraham's servant through divine guidance, Genesis chapter 24. God reaffirmed his covenant with Isaac, promising him the same blessing given to Abraham, land, descendants, the divine protection, Genesis chapter 26, 2, 3, 4, 5. बाइबल कहाँ है? इनका बाइबल कहाँ है? पार्टनरशिप में ऐसा कैसे चलता है? बाइबल कहाँ है? हर्ष कहाँ है बाइबल? लेके आओ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी वो आपका चेहरा दिखाई दिया तो वीडियो तो नहीं बिगड़ेगा। सो जेनेसिस चैप्टर 26 का 2, 3, 4, 5 पढ़िए किसी ने, वहाँ ईसा के बारे में और ईसा का शादी के बारे में उसका थोड़ा सा सारांश या सबूत आप लोग पढ़ सकता है। 26 का 2, 3, 4, 5, अभी मैंने 26 ही बोला था। As the Lord said, appeared to him and said, "Do not go down to Egypt, dwell in the land of which I sent you. Sojourn in this land, and I will be with you, and bless you, I will bless you. For to you and your offspring I will give this land, and I will So establish." the same covenant which God made with Abraham, that was known as Abrahamic covenant, the same thing again he reaffirmed to Isaac in these verses. You understood? जैसे ही वाचा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसको हम बुलाता है अब्राहमिक कवनेंट। वही कवनेंट को उनकी बेटा इसहाक को भी परमेश्वर ने रीअफर्म किया, मतलब और एक बार ये मैं करूंगा करके पक्का किया। सेम टू सेम बात, लैंड, डिसेंडेंट्स एंड blessing. Then legacy, even when we read, we will take the name of Isaac and we will take he is also there in the list of our forefathers, patriarch के अंदर इनका नाम ये है करके हम भी बोलता है। देन जेकब किसकी बेटा था? और जोसेफ किसका बेटा था? सो कहानी हमको पता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जेकब और जोसेफ, जेकब ने अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ इकट्ठा किया। इन आवर हिस्ट्री वी कैन स्टडी दैट जेकब collected, gathered all the material things which he can, but a day came he have to leave everything by himself. मल्ल युद्ध करने के लिए चला गया नहीं, वहाँ मल्ल युद्ध हुआ। So he gathered many things, many property and many things, बैल बकरियां सब कुछ था, लेकिन एक समय आ गया, अकेला हो गया। He understood, if at all I should get blessing, it will be from and it will come from God. इसलिए बोला मल्ल युद्ध करने के समय, until and unless you bless me, I will not leave you. कहाँ पकड़ना था वहाँ पकड़ा था स्वर्गदूत ने। Then next one, B, आउटलाइन में B, deliverers and lawgivers. So book of Genesis का कहानी, पेट्रियर्क का कहानी done. The last one was Joseph and now he is in Egypt. नेक्स्ट वन डिलीवरर्स एंड लॉ गिवर्स। डिलीवरर्स मतलब बचाने वाला, वही है ना। देन लॉ गिवर्स, नियम को देने वाला। उन लोगों का युग आ गया। शुरुआत में किसके नाम है? मोसेस। एक्सोडस चैप्टर 1 to 15 मूसा का कहानी है। सिग्निफिकेंस ओनली आई विल रीड। Moses symbolizes divine deliverance through faith and obedience. His mission prefigures Christ's ultimate deliverance from sin and death. His leadership established the foundation for Israel covenant relations with God. And the third point और एक बार, इनका लीडरशिप, इन्होंने अगुवाई देने का तरीका और his leadership was the foundation of the relationship between Israel and God. किसका? मूसा का। 40 साल कहाँ था? महल में। 40 साल टोटल 40 साल महल का अंदर था। किसी ने प्रचार किया था ना इसके बारे में 2 दिन पहले,
उन्होंने किया था। देन आफ्टर मोसेस हु वाज देयर? Joshua, the conqueror and successor. Scripture reference Joshua chapter 1 to 24. Joshua succeeded Moses as Israel's leader and was tasked with leading Israel into the promised land. So मूसा को promised land तक जाना नहीं हो पाया, लेकिन जब ये लोग इजिप्ट से चले गया था, यूसुफ का हड्डी तो लेके गया था। जब जिंदा था लोग बेचने के लिए कोशिश किया, उसका मरने के बाद भी इसको उठा के चलना पड़ा। वो कहानी तो याद है ना? सो मूसा ने देश को देख पाया, जा नहीं पाया। व्हाट वाज द रीजन? परमेश्वर ने बहुत बार बोला था, जो मैं देता हूं वैसे ही दे देना, गुस्सा मत। कुछ कुछ जगह पर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए परमेश्वर ने बोले देखो, जाना तो नहीं होगा। वही है दर्द ज्यादा। पूरा सेवका करने के बाद देखो मत आओ, उसके पहले मर गया, अभी क्या दर्द होगा? कौन गया? कैसे गया? न्यू टेस्टामेंट हम देख रहे हैं तो कहीं पे ऐसा है कि मूसा आया, एलिजा आया, वो न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे। सो इधर जोशुआ है, वो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाता है, पतरस और यूहन्ना नीचे था, वो वाला कहानी है ना। सो जोशुआ मूसा के बाद he comes under deliverer, not he also comes under lawgiver also. So Moses comes under both deliverer and lawgiver. उन्होंने बचाने वाला भी था और नियम देने वाला भी था। जोशुआ नाम का मीनिंग है द लॉर्ड इज साल्वेशन। ये जोशुआ करके नाम यशुआ इन हिब्रू, वही नाम है जीसस इन ग्रीक और इन इंग्लिश यीशुस। मीनिंग भी सेम है, द लॉर्ड इज साल्वेशन। ही रिप्रेजेंट फेथ, करेज एंड ओबीडियंस इन फुलफिलिंग गॉड प्रॉमिस। उनके जीवन के बारे पढ़ा था, उनके विश्वास, उनके धीरज और उनका ओबीडियंस हमको ज्यादा दिखाई देता है। सो आज का प्रचार था ना जोशुआ से, एक अगुआ था, एक समय हो गया, लोग का बीच में क्यों दुख आ रहा कर जब प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने बोला बीच में एक बंदा कुछ चीजें लेके आकर, जो चीजें मत लेना करके बोला था, द थिंग व्हिच आई आस्क्ड हिम टू डोंट टेक, he took it, he did it and he is living in between you। उसके क्या करना करके बोला, सामान लेकर क्या करना करके बोला उसको, उनको भी जलाओ करके बोल दिया। सो ए लीडर शुड डू दैट, उन्होंने किया। सो जजेस लॉगिवर्स का हो गया और डिलीवरर्स का हो गया। नेक्स्ट द जजेस, they were God's appointed deliverers। Scripture Genesis Judges chapter 1 and 2, after Joshua's death Israel entered a period of when we study Joshua chapter 1 verse उसका पूरा अध्याय present context में polytheism है ना, polytheism, what is meant by polytheism? बहुत सारे God। So if you read through book of Joshua you will find out that they had 3 gods, 3 परमेश्वर था। संतान के लिए, परंपरा बढ़ाने के लिए एक परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, खेती बाड़ी करने के लिए एक परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, युद्ध आते समय यहोवा के पास जाते थे। कौन? इसलिए जोशुआ ने बोला तुम लोग कुछ भी कर दो, मैं और मेरा घराना, वो वचन का कॉन्टेक्स्ट वही है। वो लोग अलग अलग समय के लिए अलग अलग परमेश्वर का रखता था, जैसा आजकल है। सो पॉलीथीइज्म एक आइडेंटिटी, मतलब एक छोटा सा आइडिया कहाँ पड़ा है जोशुआ। जब हम इस क्लास में सुनते हैं ना, आप लोग एक अविश्वास की समाज सुनना, तब और अच्छे से समझ आएगा। मतलब कि इतना सारा परमेश्वर क्यों है, ये हमारा ये रीति रिवाज करके सोचा तो अविश्वासी को ये पढ़ने से सुनने से क्या समझ आएगा, ये हमारा नहीं है, पुराना था, वो गलत था करके उस दिन पिता ने बताया था जोशुआ ने, फिर भी लोग करके आया। और मूसा का परमेश्वर ने बोला था कोई मूर्ति से आराधना मत करो, अभी ऐसा एक मन में सुना तो और तो अच्छे से समझ आएगा शायद एक अविश्वासी के मन में। नहीं तो हम मसीह लोग ही है, मैं मसीह का बात ही बोल रहा हूँ, आप यही सुन रहे। ऐसा बैठना है, आप कुछ बातें प्रूव करने के लिए बैठा है, ये बंदा बोल रहे सही है नहीं, ढूंढ के देखना, तब और तो अच्छे से समझ आएगा। उसका मतलब ऐसा नहीं उल्टा सीधा सवाल पूछना। सो देयर आर सम नोटेबल जजेस। फर्स्ट वन ओथनिएल, जजेस चैप्टर 3।
7 से लेकर 11 ESV बाइबल में टुकड़ा 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 करके उसका नाम दिया है। खोल के देखा तो अच्छे से समझ आएगा। ESV बाइबल में और ये वो बाइबल, ये आलसी देखो और किसी का बाइबल उधार पे लेके बैठा है। जब युद्ध आएगा वो उसका आयुध लेके चले जाएगा। So there are some notable judges: Othniel, Ehud, Deborah, Gideon, Jephthah, शिमशोन। शिमशोन का, सामसन का कहानी तो बोलने की जरूरत नहीं, आता है। हमारा टीचर बताता था जहां नहीं सोना है वहां सोया तो शिमशोन के जैसा हो जाएगा। So they were notable judges. By studying about judges, what is the significance? अभी के लिए हमका क्या लाभ है? The judges were instruments of God's mercy, raised up to restore Israel's faith. इज़राइल लोगों को विश्वास को वापस लौट के देने के लिए, वापस उनको लौटाने के लिए इज़राइल का जजेस को परमेश्वर इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया था। Their stories reveals that deliverance is an act of divine grace, not human merit. जजेस का काम हमको एक बात दर्शाता है, परमेश्वर किसी को बचाए या चुना तो वो इंसान का कुछ काम की वजह से नहीं है। दैट इज ओनली डिवाइन ग्रेस। जैसा अभी सवाल पूछा था, उनको क्यों प्यार किया? डिवाइन ग्रेस। दे फोरशैडो द अल्टीमेट डिलीवरर जीसस क्राइस्ट हु ब्रिंग्स परमानेंट साल्वेशन। सो यीशु मसीह का बारे में भी वो एक न्याय करने वाला है करके, व्हेन ही कम्स फॉर द सेकंड टाइम क्या करेगा करके बोला, देयर इज अ डे ऑफ जजमेंट। So he is also judge. Then coming to kingship और एक kingly deliverer, मतलब ये एक राजा भी है एक डिलीवरर भी। कौन? अरे कौन? वहां नाम लिख के रखा है, डेविड is also king, is also a deliverer. दानिएल। स्क्रिप्चर रेफरेंस 1 शमूएल 16 का 2 से लेकर 2 शमूएल चैप्टर 24 तक। आज दाऊद के बारे में प्रचार किया था। एप्लीकेशन क्या बताया था? जब उन्होंने बोला मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ था करके, मैं थोड़ा सोचा अभी क्या बोलने वाला है, फिर भी दाऊद के समान कुछ नहीं किया। कुछ किया था, फिर से घर से निकाल कर बेंगलुरु में भेजा पापा ने। ठीक है। सो व्हेन यू स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ डेविड, ही कम्स अंडर किंग एज वेल एज डिलीवरर। वो शाऊल से नहीं हो पाया। शाऊल का शुरुआत बहुत अच्छा से आकर शमूएल ने बोला था जाकर रुकना। कहाँ रुकने के लिए बोला? जगह का नाम क्या? वो जगह पर जाना, वहां याग सैक्रिफाइस करना है। यू शुड नॉट गिव ए सैक्रिफाइस, आई विल कम एंड आई विल डू। गिलगाल, गिलगाल था। गिलगाल में रुकने के लिए बोला था। शमूएल आस्क्ड, देयर वाज वन कंडीशन when शाऊल became king, शाऊल का राजा बनने के समय एक कंडीशन शमूएल ने रखा था, तुझको राजा परमेश्वर ने नियुक्त किया, लेकिन गिलगाल में जाकर वेट करना। when I will come, I will do the sacrifice। बट लोग जल्दी जल्दी करो 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 करके बोलने से हमारा शाऊल ने क्या कर दिया? बलि तो कर दिया, वो पाप हो गया। सो वहां से लेकर कहानी खत्म। फिर खुद राजा बन के बैठा था, फिर नहीं हुआ। he was already in the kingship, God chose David. That's why when David killed Goliath, he got angry on him because वहां लड़की लोग गीत तो गा रहा था। शाऊल कितने को मारा? दाऊद कितने को मारा? गुस्सा आ गया थोड़ा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कहानी को हम पुराना जो बात है समझने के लिए। सिग्निफिकेंस। सो ये दाऊद के बारे में जब मैंने पहले पढ़ा था, हम यीशु मसीह पे चले गया। When I studied about David, mostly all pastors preach the good side of David. But when I started studying about David, मैंने आंधी से बोला ये दाऊद के बारे में सब लोग भजन संगीत लेकर दाऊद ये है वो है करके प्रचार करता है, क्योंकि उनका भी पर्सनल साइड में बहुत फेलियर्स था, बहुत फेलियर्स। आज वही भजन संगीत हमने पढ़ा। एक समय था कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन जब समझ आ गया कबूल किया। वो भजन संगीता 51 है बैकग्राउंड।
David's deliverance of Israel prefigures Christ's victory over sin and death. His Psalms expresses the spiritual dimension of deliverance, trust in God amidst trials. So ये है दाऊद के बारे में. बीच में हमने एक बांदा का नाम भूल गया, उसका नाम क्या है? दाऊद की बात आता है सुलेमान. बुद्धिमान था, वो भी उनके बारे में भी लिखा है. पता नहीं सेकंड राजा का अध्याय 3 में या दूसरी राजा का, फर्स्ट राजा का. सो इट इज रिटन देयर ही लव्ड गॉड करके पहले लिखा है. उसके बाद जाते 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 अध्याय 11 में जाते बीवियों को प्यार करना शुरू किया. वहां से लेकर जिंदगी उल्टाई है. देन फिफ्थ पॉइंट, जीसस क्राइस्ट द अल्टीमेट डिलीवरर. इससे बढ़कर और कोई बचाने वाला. अल्टीमेट मतलब यही लास्ट है. इससे आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं. क्या क्या कुछ तो बोला था, अनलिमिटेड अनलिमिटेड करके. हाँ, स्क्रिप्चर रेफरेंसेस मैथ्यू, मार्कोस, लूकोस एंड यूहन्ना. 4 सुसमाचार है यीशु मसीह के बारे में. देन in the morning class we studied Jesus is the fulfillment of Old Testament prophecy. What all the prophecy that have took place in the Old Testament by the birth of Jesus Christ, by his life, by his death, by his ascension, all the prophecies fulfilled. Some of the prophecies which he told at the same time Micah told, that is not yet fulfilled. Micah अध्याय 4 पढ़ के देखना. मलाकी, सॉरी, मलाकी ने अध्याय 3 में शायद बोला वो पहले आगमन होगा. व्हेन ही कम्स इन द फर्स्ट टाइम सबको सुधारने के लिए आएगा. बट व्हेन ही कम्स फॉर द सेकंड टाइम यू कांट बियर द साउंड, यू कांट बियर एनीथिंग. ही विल कम टू जज करके लिखा है, बाद में पढ़ना, अभी नहीं. सेकंड, we are going to take Moses once again only in the list of lawgiver of Israel. Why? Because through him God gave commandment to Israel. Exodus chapter 20. From Exodus chapter 22 till 30 or 31 इस 10 आज्ञाओं का विवरण है, एक्सप्लेनेशन है. एक एक आज्ञा और उसके नीचे हर गोत्र का क्या क्या काम है, क्या क्या करना है. So when he gave commandment, that commandment is divided into 3. मैंने उसी दिन भी बोला था, moral law, हमारा व्यक्तिगत रूप से चाल चलन कैसे होना है, moral law, personal laws, और what are the laws which I should maintain or I should follow in my personal life. Second, civil law. सिविल मतलब सोसाइटी, सामाजिक रूप से क्या क्या नियम को फॉलो करना है. सेरेमोनियल लॉ, हाउ टू वर्शिप, हाउ टू सैक्रिफाइस, और पुरोहित लोगों का ड्यूटी क्या है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रीस्ट. सो देयर वर 3 लॉज अंडर आवर सिविलाइजेशन. अर्थशास्त्र, इंडिया इफ यू गो एंड रीड द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया यू विल फाइंड आउट अर्थशास्त्र ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन का हिंदी क्या था? सभ्यता का पहला किताब करके माना जाता है कौटिल्य करके जो व्यक्ति था, जो बिहार में जीता था, चाणक्य राजा का दोस्त था. उन्होंने ही, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वी हैव इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. राहुल गांधी हमेशा एक रेड कलर किताब के साथ दिखाई देते हैं इधर. इसने देखा रील्स में? वो जो किताब अभी है वो जमाने में अर्थशास्त्र था कॉन्स्टिट्यूशन के समान. वो अर्थशास्त्र में ही रोट मॉरल लॉ, सिविक लॉ एंड सेरेमोनियल लॉ. वो देखकर हमारा राजा लोग देश को चलाते थे. सो 2 भाग था उसमें, जहां बनी जहांगीरी. जहां बनी मतलब क्या है, देश को डेवलप करना. जहांगीरी बोलने की जरूरत नहीं, शायद हिंदी में है. दादागिरी करते हुए भी देश को, सीधा उसका मीनिंग, या मतलब कब्जा करना था. अभी मैं एक राजा हूँ, मुझको केरल को कब्जा करना है. केरल का ऊपर जीतना तो मैं क्या करना पड़ेगा, सेनाओं को भेजकर कब्जा करवाना पड़ेगा. मतलब 2 सोच में वो लोग नियम को फॉलो करता था इंडिया में. दैट वाज सेम विथ इवन ओल्ड टेस्टामेंट ऑल्सो. राज के बीच में लड़ाई होकर कब्जा तो करते थे.
सो सेम था सिविलाइजेशन का। ये सिविलाइजेशन का इतिहास ढूंढते गया तो इसका अंदर जो मैटर हुआ सब सेम है, जैसे पुराने नियम में है वैसे ही है। द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, द लॉ रिवील्ड गॉड्स होलीनेस एंड ह्यूमैनिटी नीड ऑफ रिडेम्पशन, इट सर्व्ड एज अ गाइड फॉर राइचियस लिविंग, द लॉ पॉइंटेड फॉरवर्ड टू क्राइस्ट। सो इवन मत्ती अध्याय 1 से लेकर जितना बातें लिखा है 10 आज्ञा का नया नियम आज बताया था ना शायद, वहां लिखा है तू किया तो गलत है। मत्ती में आते क्या लिखा, सोचा तो भी, इसलिए रिपेंट। देन कमिंग बैक टू जोशुआ अगेन, अंडर ओनली द एनफोर्सर ऑफ द लॉ, एनफोर्सर में और नियम को पालन करवाने के लिए और करने के लिए और मजबूत से कौन काम किया। So Joshua again, after the death of Moses, Joshua was there. He insisted or he again instructed people to follow these laws. References Joshua chapter 1 verse 7 to 8. If you read Joshua chapter 1, I still remember the preaching of Sharin sir. उन्होंने एक दिन एक प्रचार किया था, कितने लोगों को याद है? शेरिन सर एक बार प्रचार किया था। उस दिन मुझको भी समझ आ गई इसका कहानी ऐसे करके। मैं जो बातें बताया उससे राइट भी नहीं जाना। खोलिए जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7। एंड गॉड प्रॉमिस्ड वन थिंग, रीअश्योर्ड, द वे आई वाज विद मोसेस आई विल बी विद यू आल्सो। चैप्टर 1। Only be strong and very courageous. Courageous. Be careful to do according to the law that Moses my servant commanded you. सो मूसा के साथ कैसे था वैसा ही मैं तेरे साथ भी। मूसा के साथ कैसे था परमेश्वर? हाँ, फ्रेंड के जगह पे फ्रेंड था, दंड देने के समय जज भी था, इसलिए वो बोलने के लिए मैंने पूछा। मतलब इवन गॉड प्रॉमिस्ड टू जोशुआ, द वे आई वाज विद मोसेस आई विल बी विद यू ऑल्सो, डरो मत, आई एम विथ यू। मतलब गलती किया तो देश को दिखाऊंगा, जाना नहीं। इनडायरेक्ट मैसेज था शायद, मतलब इसलिए बोला मेरी बातों को छोड़कर राइट भी मत मुड़ो, लेफ्ट भी मत मुड़ो, सीधा सीधा उसको ही फॉलो करना। उसके बाद बोला द वे आई वॉज विद मोसेस आई विल बी विद यू। वहां से जोशुआ को सब बातें समझ आ गई। देन जोशुआ का कहानी खत्म हो गया। शमूएल द प्रोफेट एंड जज, शमूएल के बारे में पढ़ने के समय he was a prophet and he was a judge. Reference First Samuel chapter 1 verse 2, chapter 1 to 12. हन्ना का कहानी से लेकर पेनिन्ना और हन्ना, एल्काना था ना दूसरा भी। तो इन लोगों का कहानी से लेकर किसी ने लिखा था ना पेनिन्ना, हाँ so First Samuel chapter 1 to 12 you will get all the details about prophet Samuel. He did mainly two duty, appointing Shaul and appointing David. उसमें से दोनों भी क्या हो गया। पादरी ने हमको भेजा कर हम कुछ उल्टा सीधा काम किया तो पादरी का फेलियर नहीं है, किसका फेलियर है? जैसे एक कहानी बोलते हैं ना, पिता जैसा है बेटा वैसा ही होगा करके, कभी कभी बोलते हैं। कुछ लोगों का बाप को इधर ही दिखाई देगा इसे तो। So Samuel served as both prophet and judge during the time of moral decline. He upheld the law and called Israel to repentance. So even though he was a judge and he was a prophet, what was his message? Repentance. So one thing which we study when we study about our patriarch or forefather Samuel, he was a bridge between judges and kings. न्यायियों का और राजाओं का कहानी को जोड़ते हुए कौन आया? शमूएल आया। देन एजरा, जो नियम क्या हुआ था, किसका फोन आया? एजरा द रिस्टोरर ऑफ द लॉ। एजरा का ड्यूटी क्या था? बबली करते, जानते हो आपने? बबली
एजरा के बारे में पढ़ने के समय उन्होंने ये जो नियम को सब लोग छोड़कर दासत्व में चले गया था, when the people went to exile, when they came back, हमने पढ़े थे मंदिर बनाने के बाद एक व्यक्ति आकर नियम को फिर भी दोहराया नया पीढ़ी के लिए। कौन था? So when we study about Ezra, इस आइडेंटिटी उसका पहचान है द रिस्टोरर ऑफ द लॉ। उन्होंने मूसा ने दिए हुए नियमों में पंडित था, मास्टर डिग्री लिया था, इसलिए उनको पीढ़ियों के बाद भी बुलाकर प्रचार करवाया परमेश्वर ने। वही जो कहानी मैंने बताया बाबिलोन एक्साइल, ये सब कुछ कहानी 3 लाइन में है। सिग्निफिकेंस, एजरा's मिनिस्ट्री रिवाइव्ड द स्टडी एंड ओबीडियंस ऑफ द लॉ। नियम के बारे में, लॉ के बारे में वंस अगेन ही इंस्ट्रक्टेड देम और ही रिवाइव्ड द पीपल। He emphasized that true restoration begins with obedience to God's word. His work laid foundation for later Jewish tradition of scripture study and worship. मतलब ये जुडाइज्म का अंदर जो आराधना, जो रीति रिवाज आज चल रहे हैं ना, वो लोग इसको कहाँ से, मूसा की बात कहाँ से सुना करके पूछा तो आफ्टर when Moses gave all this commandment, after the life of Moses, who again repeated this commandment. If you ask this question to Jewish fellows, Jewish believers, they will point out Ezra. Why? Because इस्राएल के कहानी में इस्रा ही फिर भी ये कहानी नया पीढ़ी को दोहराया था। एजरा कहाँ गया? एजरा। देन पॉइंट नंबर 5, अगेन जीसस क्राइस्ट, बट हेडिंग इज डिफरेंट, द फुलफिलमेंट ऑफ द, मतलब नियम को भी कौन पूरा किया? हु फुलफिल्ड इवन द लॉस व्हिच वाज देयर इन ओल्ड टेस्टामेंट। क्वेश्चन आया था, लिख देना मैथ्यू चैप्टर 5 to 7, जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, एक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 पढ़ना। Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but fulfill. यीशु मसीह ने बोला, ऐसा मत सोचो मैंने इस नियमों को तोड़ने के लिए आया या निकालने के लिए आया। वो जो नियम दिया गया था ओल्ड टेस्टामेंट में, मैंने इसको फुलफिलमेंट कर दिया। ये लेकर कुछ लोग बोलता है वी शुड नॉट फॉलो ओल्ड टेस्टामेंट लॉ। ऑफ कोर्स इवन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग ओल्ड टेस्टामेंट लॉ, यू शुड फॉलो न्यू टेस्टामेंट लॉ। सो न्यू टेस्टामेंट लॉ अगेन स्पीक्स अबाउट सेम थिंग, पर थोड़ा टाइट है वो, समझ है? फॉर एग्जाम्पल जूइश पीपल के लिए यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, समझ है? जूइश लोगों के लिए यीशु मसीह अभी तक नहीं आया क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं किया था, क्योंकि वो लोग में सोच में राजा आएगा पालन करेगा। राजा कहाँ जन्म हुआ था? कचरा के अंदर, मतलब गाय का घर पे। राजा किसके साथ घूमता था? So it was very difficult for the Jewish people to accept him. He is Jesus Christ. इसलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया गॉस्पेल में। So यीशु मसीह ने खुद बोला, मैंने नियमों को अबोलिश करने के लिए नहीं आया, मैंने इसको फुलफिलमेंट कर दिया। मतलब एक नियम था, किसी ने उसको फुलफिलमेंट कर दिया, अभी एक नया नियम की जरूरत है ना। इसलिए हमारा बाइबल का अंदर क्या है? नया नियम, न्यू टेस्टामेंट। वो युग में मैं और आप समझ आया? सिग्निफिकेंस, यीशु मसीह की कहानी है, उनके बारे में क्या क्या बातें हमको समझ आ गया। इट ऑल्सो कनेक्ट विथ मॉरल फाउंडेशन, ए पर्सनल फाउंडेशन, ए सिविक फाउंडेशन। यीशु मसीह का कहानी सोसाइटी के लिए भी, ही ऑल्सो वर्क फॉर सोशल, ही वाज आल्सो डूइंग सोशल वर्क। मदर तेरेसा जैसे लोग यीशु मसीह को देखकर सोशल वर्क के लिए इसलिए निकला। देन पर्सनल मैटर, सेल्फ कंट्रोल, ये सब बातें आज का प्रचार था। देन फिर मैंने क्या बोला था? मॉरल, हाउ वी शुड लिव। इसे यीशु मसीह एक जगह पे बोला ना, जिसको चुंगी देना है चुंगी देना, मछली का मुंह पे देखना, जो मिलेगा वो लेकर उसको देने का उसको दे दो, इसको देने का इसको दे। इसलिए पतरस भी बताता है, पतरस ने पौलुस भी बताता है, जो लीडर्स लोग है आपका, वो लीडर्स मतलब राजकीय रूप से भी, पॉलिटिकली वी हैव टू ओबे देम।
वो गलती करने को बोला तो ओबे करना करके नहीं, एक देश के लिए कुछ कुछ नियम हम ओबे करने की जरूरत है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं हमारा नागरिकता इधर का नहीं है, वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन, इधर का आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ फेंक कर जाकर मुझे बैंक का अकाउंट देने करके बोला तो देगा? सो इधर का नियम फॉलो करना ही पड़ेगा, वो अच्छा है तो। देन अंडर दिस हेडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिलीवरर्स एंड लॉ गिवर्स, दो तीन बातें हम पढ़ेंगे। मोसेस डिलीवर्ड इस्राएल फ्रॉम इजिप्ट and they gave them law at Sinai. Joshua led them. मतलब Moses delivered them and gave them the law, but Joshua led them to follow these laws. मतलब ये redemption, redeemer or the lawgiver or the deliverer, they have a connection. मतलब they were instructing and leading these people to a level. After his time, the other person took the responsibility. So both are connected. Doesn't mean मूसा ने नियम मूसा से ज्यादा यही हुआ, मूसा का परमेश्वर ने नियम दिया, जाकर पब्लिकली बोलने के लिए बोला। Then theological significance, theological significance का हिंदी क्या था? पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर का सोवर्निटी। सोवर्निटी मतलब परमेश्वर सब का ऊपर अधिकारी है, ही इज इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, सर्वव्यापी है। उनको छोड़कर एक चीज भी हम नहीं एक्सप्लेन भी कर सकता है, कोई हिस्ट्री भी नहीं है मसीह लोगों का। देन देयर वाज ए कवेनेंट रिलेशनशिप, एक रिश्ता था परमेश्वर का और इंसान का, एक कवेनेंट रिलेशनशिप था। खाना ज्यादा हो गया। Then moral order, how we should live, that order also there in the above point. Then it also foreshadows Christ, यीशु मसीह को दर्शाता है वो जगह पर। उदाहरण, ईसा को बलिदान देने के लिए गया था तो वहां एक मेमने को दिखाई दिया, वो मेमना किसकी समान प्रतिछाया है? यीशु मसीह का। सो ऐसा वाला बहुत प्रतिछाया आप लोगों को दिखाई देता है। रूथ को बचाया था कौन? उबेदा। बोवास भी एक रक्षक, एक बचाने वाला का रूप में आया। उसका कहानी भी किसको दर्शाता है? कंक्लूजन बोलने की जरूरत नहीं, ऊपर जितना बातें मैंने बोला उतनी बातें बोलते हुए कंक्लूजन कर दिया, वो टॉपिक वहां खत्म। और 1 घंटा है हमारा। नेक्स्ट जजेस के बारे में, पॉइंट नंबर C है हमारा। इधर ये जजेस के बारे में और थोड़ा क्या बोलता है, समराइज्ड समाचार डाटा दिया है। फॉर एग्जाम्पल उन लोगों का हिस्ट्री, मतलब जोशुआ का डेथ से लेकर किसकी कहानी है? किसका? जोशुआ का किताब के बाद किसकी कहानी है? वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका रोल्स क्या था हमने ऊपर पढ़ा है। मेजर जजेस के बारे में इधर दिया है, उन्होंने क्या किया करके भी इधर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ओथनिएल ने क्या किया? देन थीम इज ओनली वन थिंग, रिडेम्पशन या रिपेंडेंस। कमिंग टू किंग, पॉइंट नंबर C में पॉइंट नंबर 2 राजाओं के बारे में कहानी। सो ये दोनों बातें बोलकर मैंने, बाकी कहानी तो आता है। यूनाइटेड किंगडम कहां से लेकर किसके समय तक था? कहां से लेकर आया तक था? और थोड़ा आगे जाके सोचो। मैं राजाओं का नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं राजाओं का नहीं पूछ रहा हूँ। ये किंगडम यूनाइटेड कब से लेकर कहां तक है? उत्पत्ति से लेकर सुलेमान का समय तक किंगडम यूनाइटेड था। उसके बाद किंगडम डिवाइड हो गया, मतलब आफ्टर सोलोमन्स डेथ द किंगडम डिवाइड इनटू 2।
राजाओं के बारे में जीवन से हमने क्या क्या कहानी सीख सकता है? When God appoint you for something, focus only on that thing. Don't focus only on your personal thing. मतलब पर्सनल सेल्फिश नेचर. If you focus that, राजाओं को जो हुआ था वही होगा. In all the life and history of kings, whenever God gave them a promise, God told, for the sake of my name, for the sake of my people, I will do this. मतलब मेरी जनता के लिए और मेरी नाम के लिए मैंने ये बातें जिसको करके फिर भी उल्टा किया तो निकाल देता है. देन किंग्स का नाम, किंग ऑफ इजराइल. इजराइल में कितना राजा था और राजा के बारे में शॉर्टकट में नोट्स है. जेरोबाम 1, उन्होंने क्या किया? कौन सी राजा था? उन्होंने आइडल वर्शिप को इंट्रोड्यूस किया. फिर भी कौन? जेरोबियम 1. सो दिस फेलोज आर किंग्स ऑफ इजराइल. ईएसवी बाइबल में क्रॉनिकल्स की वहां होगा, ये पूरा का पूरा दिया है ईएसवी बाइबल में. देन किंग्स ऑफ जूडा, मतलब सदर्न किंगडम. अभी सुलेमान का मृत्यु के बाद जगह दो विभाजन हो गया. संगे क्या हुआ? विभाजन हो गया, मतलब दो तरफ से भी राजा लोग हैं. उनका लिस्ट इधर है, शायद बाइबल में उनका रेफरेंस ही दिया है. इसमें वो किसकी बेटा था, उन्होंने क्या करने से क्या हो गया करके भी लिखा है शॉर्टकट में. एट द सेम टाइम इन लोगों को हराने के लिए कुछ राजा लोग आते थे. उदाहरण साइरस, बेलशासर, नेबुकदनेस्सर बाबिलोन में लेके गया था ना इन लोगों को असीरिया से आकर. मतलब ये दो किंगडम को छोड़कर अलग अलग किंगडम था, वहां का राजा लोगों का नाम भी इधर दिया. डारियस किंग के बारे में कहाँ लिखा है? शायद हग्गाई में है. हग्गाई पहले वचन पढ़ के देखो, डारियस लिखा होगा. जल्दी हग्गाई खोलो हर्ष. हग्गाई अध्याय 1 में पहला डारियस राजा का कहानी है. बस. सो ये जो लिस्ट में विभाजन हुआ, देश दोनों तरफ से राजा का नाम भी दिया, साथ ही साथ फॉरेन किंग्स, परदेशी राजा लोग था. परमेश्वर बीच बीच में ये परमेश्वर का खुद का चुने हुए लोग गलती करने के समय ये राजाओं को लेके आकर परमेश्वर के लोगों को सताता था. जब मैं इसके बारे में पढ़ा, मुझको ऐसा लगा कभी कभी शत्रु को भी उपयोग करते हुए परमेश्वर हमको सुधारता है. वही हुआ ना इधर. शत्रु राजाओं को, इवन दे वर एनिमीज ऑफ गॉड्स चूजन पीपल, गॉड मेड देम टू कम एंड अटैक एंड टेक देम टू एक्साइल फॉर 70 years. समझ आया? कंक्लूजन, ऊपर किए हुए राजाओं का नाम लेकर उसका अंत हुआ है. गो एंड रीड हिब्रूज चैप्टर 11 का, इब्रानी का पत्री. मतलब ये राजाओं का सबकी कहानी अंत होता है. अल्टीमेट किंग इज जीसस. और एक हेडिंग नहीं है इसमें. नहीं मैं बताता हूँ. वो रेवलेशन, रेवलेशन नहीं, हिब्रू कहाँ था? द बेटर 12 का 37. बोलने का इतना ही था. इवन व्हेन वी स्टडी अबाउट राजास, द अल्टीमेट किंग इज जीसस क्राइस्ट. 37 नहीं है, 32. वहां कहाँ पे एक जगह पर लिखा है, सबसे बढ़कर उत्तम चीज हमको मिल गया, वही है यीशु मसीह. ऐसे तो 12 के अंदर देखना लिखा तो है, रेफरेंस भूल गया. वो वचन में तो है. ये इब्रानी के पत्री में बेटर करके शब्द को ज्यादा किया. मतलब पुराना नियम का, सारे इतिहास का, पुराना फोर फादर्स का नाम लेते हुए लेखक ने बताया, अभी भी मेरा बाप ये के, मेरा दादा ये किया था करके मत बैठो. इससे बढ़कर उत्तम चीज यीशु मसीह हमको मिल गया, इसलिए उनकी आज्ञा को पालन किया करके बताया. इधर 2 कंक्लूजन है.
In the first conclusion, the kings mentioned in the Bible played a crucial role in shaping the history of God's people. पहला कंक्लूजन किंग्स के लिए विरोध नहीं है, उसके लिए पॉजिटिव बात है. Even though they committed sin, even though they did not obey God, परमेश्वर ने इन लोगों को देखकर इंसान को या ये इज़राइल का लोगों को सीधा सीधा चलाने के लिए ही कोशिश किया. मतलब द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस कंक्लूजन इज राजाओं को परमेश्वर ने देने से व्हेन गॉड अपॉइंटेड किंग्स ही अपॉइंटेड देम विद अ पॉजिटिव पर्पस. बट व्हाट दे डिड, दैट इज रिटन हियर. द किंग्स ऑफ द बाइबल इलस्ट्रेट both potential and the failure of human leadership. सेकेंड वाला कंक्लूजन राजाओं का जिंदगी और द लाइफ ऑफ किंग्स का विरोध बात है, क्योंकि हर एक नहीं, शायद 5 राजाओं का थोड़ा 5 भी नहीं है शायद, अच्छा करते करते आएगा, कहाँ ना कहाँ एक जगह पर क्या होगा. सो व्हेन यू लुक इनटू देयर लीडरशिप, एक जगह पर तो ठीक था. उदाहरण डेविड ठीक तो था, बहुत युद्ध लड़ा, जीता, सब कुछ था. लेकिन when you come to their leadership matter after some time in their ministry, what happened? They also failed. That's why God himself emptied and he came to this earth. अभी समझ आया कहानी कनेक्शन कहाँ होगा. राजा लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, ठीक होगा या इनकी द्वारा मिशन या सेवकाई को आगे वो नहीं हुआ. कहाँ कहाँ कुछ कुछ जगह पर राजाओं लोग ने दे लिव्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल. दैट्स व्हाई गॉड हिमसेल्फ केम टू दिस अर्थ. अभी समझ आया वही जीसस क्राइस्ट आने का और एक ऐतिहासिक बात है. ये लोग नहीं कर पाया, यीशु मसीह आकर किया, वो अभी हम नहीं कर पा रहे. मतलब शत्रुओं को प्यार करने के लिए बोला, कहाँ से होगा. शत्रु कहाँ, आज एक मछली का टुकड़ा देने वाला बंदा के पास कल हम नहीं बैठता है. कॉन्टेक्स्ट का बात बोल रहा हूँ. हाँ, कुछ लोग उठा के भी खाता है. देन इन द लास्ट सेक्शन डी, प्रोफेट्स. सुबह हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है. सो इधर प्रोफेट्स के बारे में और थोड़ा थियरी दिया है, मतलब ऊपर ये किया करके लिखा है. इन द सेकंड पीडीएफ सिचुएशन हर एक प्रोफेट, उनके सेवकाई, वो जो लोग पुराने का क्लास नहीं सुना था वो डाउनलोड कर वही पढ़ के बैठना, एग्जाम के लिए काम होगा. समझ आया. 2 नोट्स मैंने भेजा था, उसमें से ये शॉर्टकट वाला है. देन ये रोल्स क्या था, उसमें से मेजर माइनर. मेजर प्रोफेट्स में मेन लोग 5 था, आइसिया, जेरमिया, देन लैमेंटेशन, एजेकियल एंड दानियल. ये लोग क्या किया करके भी लिखा है. मतलब मुख्य रूप से उनका संदेश का कंटेंट क्या था उतना ही लिखा है. देन माइनर सबका नाम जोड़ के दे दिया कंक्लूजन के साथ. एंड हियर उन लोगों का मैसेज वी कैन डिवाइड इनटू 3, मतलब प्रोफेसी को 3 भागों में बांट सकता है. रिपेंडेंस, जजमेंट, होप. सुबह भी हमने बातें देखा था. देन पॉइंट नंबर 4, फाउंडेशन ऑफ चर्च. संगे से